Lost Spring is a chapter of class 12th, and Lost Spring also be describes about the spring. Spring means childhood. In this chapter, spring indicates childhood, bachpan. Lost Spring means stories of stolen childhood, a chapter written by Anis Jung. Also describes about the story of children. There are two characters. First is Mukesh and the second one that was Sahib. And in this chapter, Anis Jung also describes, she is Anis Jung, and she also describes about the child labor, and she wants to decreasing and removing the this problem that was child labor, which also increases time to time and day by day. And first, it is important for us to read about Anis Jung. Anis Jung is an Indian author, journalist, and columnist for newspaper in India and abroad. She was also a journalist. While most known work, Unwilling India was a chronicle of the lives of women in India, noted especially for the depiction of Muslim women behind the parda. She also fight for the social causes, and the child labor and the pratha, like parda pratha, all are related to the social causes. She was born in Rourkela in 1944 at the age of 77. She was died, and she has an Indian nationality. University of Michigan, her alma mater, and no, she was also known for Unveiling India in 1987. So, this is the picture of the Lost Spring that was based on the stories of stolen childhood, and he was Sahib, works as a rag picker. And this picture also describes about the story of Mukesh, whose father and grandfather also be works of a bangle sellers. So, The Lost Spring, written by Anis Jung, talks about the national shame of children. It's based on the child labor. Being forced to live a life of poverty and exploitation. This Lost Spring chapter and the poverty describes about the condition of poor people, and their life also forced them to live poverty and the life of exploitation. The main two protagonists of the chapter, first is Sahib Alam, second is Mukesh. There are two characters, Sahib and second one is Mukesh. Don't live their childhood as they have to carry the burden of poverty and illiteracy. They can't enjoy their childhood because they also suffer with the burden of poverty and illiteracy. So, introduction is, the story Lost Spring describes the pitiable condition of poor children. The theme and the introduction of the chapter Lost Spring also describes that the pitiable condition of the poor children who have been forced to miss the joy of childhood, जिन्होंने अपना बचपन खो दिया था और पॉवर्टी में वो रहे थे, हार्ड लेबर उन्होंने करनी सीख ली थी. जब उनके एजुकेशन, उनका खेलने कूदने का टाइम था, तब वो वर्क किया करते थे, कोयल माइंस में काम करते, रैक पिकर्स का काम करते, बैंगल सेलर्स, फैक्ट्रीज़ में काम करते, जिससे कि उनकी आइज़ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता और मेनली उनकी हेल्थ पर काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता. इकोनॉमिक कंडीशन दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, जो आया था चाइल्डहुड टाइम्स का, उसने वो उन चीज़ों को तो उन बच्चों ने कभी महसूस नहीं किया. और जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी ना उनकी लाइफ की, जो मैन वर्ल्ड ने जो भी एक तरीके से सिचुएशन बनाई थी, उस सिचुएशन ने बच्चों को एक तरीके से क्रिटिसाइज़ कर दिया, एक तरीके से फोर्स कर दिया कि वो पॉवर्टी वाली लाइफ चाहिए. These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life. और इन बच्चों को स्कूलिंग की जो लाइफ थी उससे दूर कर दिया गया, उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्कूल जाने की, और हमेशा वो लेबर में ही रहे, मजदूरी करते रहे. Introduction. The story Lost Spring describes the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to the social economic condition दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड. इस मैन मेड वर्ल्ड में जितनी भी कंडीशन थी ना, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उसमें उन्होंने अपना जो आया था चाइल्डहुड का, तो उसको तो खो दिया था, ठीक है, और वो पिटिएबल कंडीशन एज ए पुअर चिल्ड्रन की लाइफ को जी रहे थे. तो लोस्ट स्प्रिंग का मतलब यही है. These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life.
इन्हें बचपन से ही स्कूल की तो अपॉर्चुनिटी से दूर ही कर दिया गया और इन्हें फोर्स किया गया कि ये लेबर करें, अपनी लाइफ में मजदूरी करें. Annie's Jung gives voice to eliminate child labor by educating the children and to enforce the laws against child labor by the government strictly. ये चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग एनिस जंग ने क्यों लिखा है? एनिस जंग अपनी वॉइस को एक तरीके से रेस कर रही है. वो जो चाइल्ड एलिमिनेट हो चुके हैं, जो चाइल्ड अपनी एजुकेशन से दूर हो चुके हैं, उनके लिए अपनी वॉइस रेस कर रही है और बता रही है कि जो चाइल्ड लेबर है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है. गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं और चाइल्ड लेबर उसके अगेंस्ट है, और उसने अपनी वॉइस की हेल्प से वो बच्चों की शिक्षा को, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन को रेस करना चाहती है. वो बच्चों को बताना चाहती है कि एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, कि एजुकेशन एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है. द गोल इज़ टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन. उसका मतलब क्या है? Why she wrote this lesson, Low Spring Stories of Stolen Childhood, why she works for the social causes. The reason is she wants to raise her voice towards the child's importance, child education, and she wants to decreasing the level of the child labor. उसने आवाज़ उठाई. क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता था, उन चीज़ों को ख़त्म करें. एंड लेट द चिल्ड्रन इन्जॉय द डे ऑफ स्प्रिंग दैट ब्रिंग जॉय अंडर देयर फिट. और बच्चे अपने बचपन को, मीन्स अपने स्प्रिंग सीज़न एक तरीके से उनके बचपन के लिए डिनोट किया जा रहा है, उसे इन्जॉय कर सकें अपने फिट के नीचे. सो द समरीज, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द समरी इज़ sometimes I find a rupee in the garbage. This is also work called by साहिब आलम. साहिब आलम का कहना है कि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कबाड़ में से ना, गार्बेज में से 1 रुपया मिल जाता है और मैं उससे काफ़ी खुश हो जाता हूँ, बिकॉज इज़ रैग पिकर. और बचपन से ही उसे चाइल्ड एजुकेशन के बारे में नहीं ज्ञान दिलवाया गया, क्योंकि फैमिली पोवर्टी थी, गांव में रहते थे, अपना पेट पालने के लिए बच्चों को मजदूरी में लगा दिया जाता था. तो जो एनिस जंग थी ना, उन्होंने इन बच्चों को देख कर रियलिटी में ये स्टोरी उन्होंने चैप्टर लिखा है. और एनिस जंग जब भी पास आउट होती थी तब वो बच्चों को देखती थी, कोई बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है, कोई चूड़ियाँ बना रहा है जिससे वो ब्लाइंड हो रहा है और वो अपनी एजुकेशन से दूर है. जो काम बच्चों को उनकी एज में करना चाहिए वो उनसे बड़े काम कर रहे हैं, जो उनकी हेल्थ को, उनकी एजुकेशन को, उनकी आइज़ को अफेक्ट कर रहे हैं. तो एनिस जंग जब भी पास होती थी ना, वो साहिब आलम को देखती थी कि साहिब आलम ना हमेशा गार्बेज में हाथ मारता रहता था और 1 रुपया ढूंढता रहता था. The first part tells the writer's impression about the life of the poor rag pickers. पहला पार्ट राइटर का एक इम्प्रेशन बता रहा है, जो एनिस जंग पुअर रैग पिकर को देखती थी, साहिब आलम की लाइफ को देखती थी. द रैग पिकर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका एंड फाउंड ए सेटलमेंट इन सीमापुरी. अब जो एक तरीके से जो रैग पिकर थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से कूड़ा उठाने वाले, वो माइग्रेटेड हो गए थे. कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे? ढाका से शिफ्ट हो गए थे, वो सीमापुरी में सेटल हो गए थे. ठीक है, पहले वो रैग पिकर रहते थे ढाका में, पर ढाका से अब वो सीमापुरी आ गए हैं. देयर फील्ड्स एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स. रीज़न ये था, जो उनके खेत थे, जो उनके घर थे, वो दोनों ख़त्म हो गए थे क्योंकि तूफ़ान आया था. और वो जब ढाका में रहते थे तब उनके पास खेत होते थे, घर होते थे, पर जब उनके घर और खेत उनसे छीन लिए गए तब उनके पास कूड़ा उठाने या भीख मांगने के अलावा कोई और अनदर ऑप्शन नहीं बचा, तो वो सीमापुरी में सेटल हो गए. दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड ए लिविंग. वो इस सीमापुरी में क्यों आए थे, बिग सिटी में क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें अच्छी लाइफ चाहिए थी. दे आर पुअर, रीज़न ये था वो गरीब थे. द राइटर वॉचेस साहिब. एनिस जंग हमेशा साहिब आलम को देखती. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड. अपने नेबरहुड में देखती, पड़ोस में आते जाते, कि ये जो साहिब आलम है ये तो हमेशा कूड़ा कचरे में से हाथ मार के गोल्ड ढूंढ रहे. गोल्ड उनके लिए कॉइन है, गोल्ड सोने का सिक्का नहीं, वो कॉइन ढूंढ रहे. कॉइन उनके लिए सोना है. गार्बेज इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ समथिंग व्रैप्ड इन वंडर. अब ये जो कूड़ा करकट था ये उनके एल्डर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर वो कुछ पैसे ढूंढता तो उससे उसकी ब्रेड आती, उसकी घर की रोज़ी रोटी चलती, तो उनके एल्डर्स के लिए एक सर्वाइवल का साधन था, जीवित रहने का. और इन बच्चों के लिए वो चीज़ थी एक वंडर, मतलब एक तरीके से नई खोज. द चिल्ड्रन कम अक्रॉस ए कॉइन और 2 फ्रॉम इट. और बच्चों को वहाँ से 1 या 2 कॉइन मिल भी जाते थे गार्बेज में से रैग पिकर्स को. दीज पीपल हैव डिज़ायर्स एंड एम्बिशन. इन बच्चों के डिज़ायर भी होते थे और एम्बिशन भी होते थे. बट दे डू नॉट नो द वे टू अचीव दैम. पर इन्हें ये नहीं पता था कि हम उसे अचीव कैसे करें. देयर आर क्वाइट ए फ्यू थिंग्स. ऐसी काफ़ी चीज़ें थी दैट आर अनरीजनेबल टू दैम, जिसे वो नहीं पा सकते थे. सेम एज द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम. नेमली, चाहे वो शूज़ हों, टेनिस हो, और ऐसी काफ़ी चीज़ें थी, क्योंकि बच्चों के सपने होते हैं हमें ये भी चाहिए, अगर किसी और के हाथ में देख लें हमें ये भी चाहिए.
लेटर साहिब ज्वाइंस ए टी स्टॉल। अब देखो बाद में रैग पिकर का काम छोड़ के ना उसने टी स्टॉल का काम शुरू कर दिया साहिब ने। वेरी गुड अर्न, जहाँ पर उसे 800 रुपये मिलते थे एंड ऑल द मील्स, और खाने के लिए भोजन भी मिलता था। द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम, और इस जॉब ने ना उसकी स्वतंत्रता भी ले ली थी। देखो पहले तो साहिब एक रैग पिकर का काम करता था और अब साहिब कौन सा काम करता है, एक टी स्टॉल में। अब देखिए सेकेंड पार्ट साहिब से ही रिलेटेड है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। सेकेंड पार्ट मेनली किसकी लाइफ से डील कर रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है ना दैट वुड बी डीलिंग विद द लाइफ ऑफ साहिब आलम रैग पिकर का, कि सबसे पहले वो एज ए रैग पिकर काम करता था, उसके बाद टी स्टॉल में आ गया, पर उसे ये चीज़ें चाहिए भी थी और वो गोल्ड कॉइन्स गार्बेज में से ढूंढ के अपनी फैमिली को खुश रखता था। अब सेकंड पार्ट है ना, सेकंड ड्रीम किसका, आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये है सेकंड पार्ट दैट वुड बी बेस्ड ऑन द सेकंड कैरेक्टर दैट वाज मुकेश, जो बैंगल सेलर से रिलेटेड है, जिसकी फैमिली बैंगल सेलर का काम करती थी और ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, बट अपनी फैमिली की पॉवर्टी और अपनी फैमिली के प्रोफेशन के आगे वो विवश था और वो एक तरीके से वो बैंगल्स का भी काम करता था, क्योंकि एक तरीके से होता है ना कि अगर फैमिली में आपके 4 फादर, फिर ग्रैंड फादर, फिर आपके खुद के फादर, अब सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फैमिली प्रोफेशन को एक तरह से आगे कंटिन्यू रखे, सेम लाइक दैट। द सेकेंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश। जो सेकेंड पार्ट था वो किससे डील कर रहा था, मुकेश की लाइफ से। हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, जो किसकी फैमिली से बिलोंग करता था, बैंगल मेकर्स की, जो चूड़ियाँ बनाते थे। फिरोज़ाबाद इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और जो फिरोज़ाबाद था ना, फिरोज़ाबाद में मुकेश रहता था, वो एक बेस्ट कंट्री थी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, मतलब शीशे की, तो शीशे की जो चूड़ियाँ बनती थी। नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर इंगेज्ड इन दिस बिजनेस, 20,000 बच्चे इस बिज़नेस में काम करते थे। एंड द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर इज़ नॉट नोन हेयर, और ऐसा कानून जो बच्चों को चाइल्ड लेबर नहीं करने देता है, बच्चों के चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है, ऐसा कोई कानून के बारे में यहाँ पर जानकारी थी ही नहीं। द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट, जो लिविंग कंडीशन थी बच्चों की और जो वर्किंग एनवायरनमेंट का था, काम करने का वातावरण, इज़ ए वॉयफुल टेल, एक कहानी है, और कैसे ये रहते थे, मतलब काफ़ी बुरा था, ये चैन की सांस भी नहीं ले सकते थे। लाइफ इज़ डिंगी सेल्स, इनकी ज़िंदगी एक ऐसे चूहे वाले जो होल्स होते हैं उसके अंदर थी। एंड वर्किंग क्लोज, और ये कहाँ पर काम करते थे, गरम गरम भट्टियों में, हॉट फर्नेसेस में। मेक दीज चिल्ड्रन ब्लाइंड, जिससे ये बच्चे काफ़ी अंधे भी हो गए थे। व्हेन दे स्टेप इनटू अडल्टहुड, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे। वे डाउन बाय द डेप्ट, या तो वो डेप्ट के नीचे दब जाते उधार में। दे कैन नाइदर थिंक, ना ही उन्हें कुछ पता सोच रहे थे, ना ही उन्हें कोई रास्ता मिल रहा था आगे बढ़ने का। देखो ये जो बैंगल सेलर्स की जॉब करते हैं ना, एक तरीके से ये जहाँ पर काम करते हैं बैंगल सेलर्स की, जहाँ पर ये जॉब करते हैं वहाँ पे जो बैंगल्स होती हैं वो एक तो बनाई जाती है कांच की, और दूसरी जो ये बैंगल्स होती है ना, ये वहाँ पर बनाई जाती हैं जहाँ पर ना काफ़ी डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, जिससे रोशनी तो इन्हें, इनकी पूरी जो आइज़ की रोशनी होती है, आइस साइट होती है ना, वो वीक हो जाती है, क्योंकि डार्कनेस में काम करते हैं, ठीक है, और बारीकी का काम होता है। और इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो इस ट्रैप से कैसे बाहर आएँ। द पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस थे, मिडल मैन थे, पुलिस मैन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, विल ऑल ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस, वो हमेशा अपने प्रोग्रेस पर ध्यान देते, उन्होंने कभी इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की नहीं सोची। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसीडर, जो वुमेन हाउस होल्ड में काम करती थी, घर की महिलाएँ, कंसीडर इट एज देयर फेथ एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, उन्हें लगता था कि ये हमारा फेथ है, हमारा भाग्य, और हमें इस ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। मुकेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक देयर, और जो मुकेश था वो सबसे अलग था, ठीक है, उसकी कहानी सबसे अलग थी। ही ड्रीम्स, उसका क्या सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, ठीक है। द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, और जो गैराज था ना वो उसके घर से काफ़ी दूर था, बट ही शैल वॉक, पर वो पैदल चलता, कम अक्रॉस मुकेश इन फिरोज़ाबाद, और फिर वो एक तरीके से अपने वहाँ गैरेज तक पहुँच जाता था जहाँ वो काम करता था। अब देखिए, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज, एक तरीके से दोबारा इसी के बारे में आगे कंटिन्यू हो रहा है, यही बात फिर से साहिब आलम के बारे में सेकंड एज ए व्यू समझाई जा रही है। द ऑथर एग्जामिन्स एंड एनालिसिस द impoverished कंडीशन एंड ट्रेडिशन दैट condemn children to a life of exploitation. These children are denied an education and forced into hardship early in their lives. अब पहले तो जो राइटर एनिस जंग, उन्होंने स्टोरी बता दी विद द हेल्प ऑफ 2 कैरेक्टर। गार्बेज में उन्होंने साहिब आलम की, और बैंगल सेलर्स में उन्होंने मुकेश की बता दी, और मुकेश का सपना था टू बी ए मोटर मैकेनिक।
अब देखो, अब ऑथर अपने व्यूज़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऑथर ने क्या एग्जामिन और एनालिस किया है इम्पोवराइज्ड कंडीशन, बच्चों की कंडीशन के बारे में जो इम्पोवराइज्ड है, जो ठीक नहीं है, अनहेल्दी हैं, और उन्होंने चिल्ड्रन और उनके ट्रेडिशन के बारे में, और उन्होंने देखा कि चिल्ड्रन कितने कंडेम्ड हैं, ठीक है, वो एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ जी रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन और से डिनाइड हैं, और वो फोर्स्ड उन्हें किया जा रहा है अपनी लाइफ के हार्डशिप्स ज़िंदगी जीने के लिए। राइटर क्या इनकाउंटर कर रहे हैं, जो साहिब है एक रैग पिकर है जिसके जो पेरेंट्स हैं उसे अकेला छोड़ गए, हैव लेफ्ट बिहाइंड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका टू अर्न ए लिविंग इन दिल्ली। वो तो दिल्ली चले गए पर पीछे उसे ढाका छोड़ गए। अब ढाका से वो सीमापुरी चला जाता है, ठीक है। तो जो उसकी फैमिली है उसने भी उसके एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, उसे काम में लगा दिया कि वो काम ही करता रहे हमेशा। His family, like many other families of rag pickers, lives in सीमापुरी। उसकी फैमिली भी दूसरी फैमिलीज़ की तरह सीमापुरी में रहती है। They do not have other identification other than a राशन कार्ड। उनके पास राशन कार्ड के अलावा कोई और दूसरी आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। The children do not go to school and they are excited at the prospect of finding a coin or even a 10 rupee note for rummaging in the garbage। गार्बेज में हाथ मारकर वो 1 रुपी या 10 रुपी नोट पाने में ज़्यादा खुश रहते हैं instead of going to school for the education। इट इज़ ओनली द वे ऑफ अर्निंग, यही उनके पैसे कमाने का तरीका है। द राइटर इज़ पेंट, राइटर काफ़ी दर्द में है साहिब की कंडीशन देखकर, जो एक रैग पिकर है हुज नेम मीन्स द रूलर ऑफ अर्थ। अब साहिब का मतलब क्या, साहिब का मीनिंग क्या होता है? साहिब वर्ड का मीनिंग ये होता है जो पूरे वर्ल्ड पर रूल करता है। लॉस द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड, पर उसने तो अपना ही बचपन खो दिया है। एंड ड्रॉइंग्स बेयर फुटेड विद हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ बेयर फुटेड नंगे पैर घूम रहा है, उसके पास शूज़ भी नहीं है पहनने के लिए, वो इतना पुअर है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से शाम तक, दोपहर तक, जो ऑथर है वो इनकाउंटर करते हैं टी स्टॉल के बारे में भी। टी स्टॉल जहाँ पर अब साहिब काम करता है आफ्टर द रैग पिकिंग एंड, और उसे 800 रुपीज़ मिलते हैं। ही सैडली रियलाइजेज दैट ही इज़ नो लॉन्गर इज़ ओन मास्टर, और वो कह रहे हैं कि अब जो साहिब है वो अपना मास्टर खुद नहीं रहा है, वो दूसरों के अकॉर्डिंग काम करता है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। एंड दिस लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी उसकी खो गई है, वेज हैवली ऑन हिज टेंडर शोल्डर, वो उसके सॉफ्ट से शोल्डर पर एक तरीके से बर्डन बन चुकी है। अब ये देखिए, अब ये मुकेश एक तरीके से पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है कैसे बच्चे ये बैंगल्स का काम कर रहे हैं। I want to drive a car. The second part describes about the thoughts of the writer towards the Mukesh who wants to be a motor mechanic and who works as a bangle seller. The author then tells about another victim that was Mukesh who wants to be a motor mechanic. He has always worked in the glass making industry, जो हमेशा glass making industry में काम करता है। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हज़ार्ड्स, उससे काफ़ी बीमारियां भी हो जाती हैं और इन्हें हो भी सकती हैं, लाइक जैसे ये अपनी आई साइट को खो दें, और ये वर्क करते रहते हैं ऐसी एब्सिमल कंडीशंस में, डार्क और डिंगी सेल्स में, तो इन्हें काफ़ी बुरी बीमारियां हो सकती हैं। मुकेश के जो फादर हैं वो ब्लाइंड हैं, क्योंकि वो बैंगल सेलर थे तो काफ़ी काम करते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एज वर हिज फादर एंड ग्रैंड फादर बिफोर हिम, और उनसे पहले उसके ग्रैंड फादर भी काफ़ी ब्लाइंड थे। सो बर्डनड आर द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में लोगों पर बर्डन था बैंगल मेकर्स का, दैट दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी, कि उन्होंने अपनी योग्यता खो दी थी, टू ड्रीम अनलाइक मुकेश, सपने देखने की। जैसे कि मुकेश को ड्रीम था टू बी ए मोटर मैकेनिक, तो मुकेश ने भी एक तरीके से सपना लास्ट में देखना छोड़ दिया, क्योंकि उसका ड्रीम था टू ड्राइव ए कार एंड यू वांट टू बी मोटर मैकेनिक, पर अपनी फैमिली प्रोफेशन के आगे, पॉवर्टी के आगे वो मजबूर था। So this is the story Lost Spring, which also describes about the child labor and also describes about the lost of the childhood of Sahib Alam and Mukesh, who want to be a motor mechanic in his life.